आंखों और सुनते कानों को सबा किरण का सलाम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। आए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। अमेरिका के सदर बाइडेन एक कानून पर दस्तखत कर रहे हैं। सदर ऑरलैंडो में प्लस नाइट क्लब में फायरिंग से 49 अफराद की मौत के 5 साल बाद बाइडेन इस कानून पर दस्तखत कर रहे हैं जो फ्लोरिडा के नाइट क्लब को कौमी यादगार के तौर पर नामजद करती है। इस दस्तखत के बाद बाइडेन फखर महीने की याद दिलाने के लिए रिमार्क्स देंगे, जहां इनके साथ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी शामिल होगा। Well, and so I just want to say I've spoken to Governor DeSantis, and we've provided all the help that they need. We sent the best people from FEMA down there. We're going to stay with them with the disaster declaration we made, provide for everything from housing to, God forbid, whether there's a need for moratoria for the bodies to be placed, everything in between. And but I just want to say, and I'm sure I speak for all the members of the Congress here today and all the survivors here, that it's a tough time. Leave without the pen, okay? All right? All right. Thank you, Mr. President. May we never have to sign another, no president ever have to sign another monument like this. Thank you. Thank you. One last thing. As I said to the survivors and those who lost folks a little earlier in private, you know, what the Congress has done means a great deal, and it's important. But it's really hard. It brings back everything as if it happened yesterday. Every time नायब सदर कमाला हैरिस की प्रेस से गुफ्तगू। नायब सदर कमाला हैरिस एल पासो TX में प्रेस से गुफ्तगू कर रही हैं। रुआमा के शुरू में ग्वाटेमाला और मेक्सिको के दौरे के मौका पर हैरिस का सरहदी दौरा इसके बड़े पैमाने पर रद्द-ए-अमल के बाद हुआ था। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने इस ख्याल पर जोर दिया है कि हैरिस का दौरा साबिक सदर के जवाब में है। And fear and harm, not only for folks who are coming here in their home country experiencing that, but along the path of their migration. And so let's recognize with this. For several years, I served in the Senate with Kamala Harris, Senator from California. We passed legislation. We are also working on passing the U.S. Citizenship Act, and we've got addressing the cause and effect, and also being partners in the Western Hemisphere, understanding that we have a responsibility, and if we ignore that responsibility, it will visit itself upon us in a very domestic way. So thank you. प्रेस बाइडेन का हुसूसी ऐलान। प्रेस बाइडेन ने ऐलान किया है कि वो और सेनेट रिपब्लिकन एक बुनियादी ढांचे के मंसूबे पर मुआहदा कर चुके हैं। सदर बाइडेन ने कहा $600 बिलियन की दो तरफा तजवीज़ में पुलों, सड़कों, शहरों और दीगर बुनियादी ढांचे के मंसूबों के लिए नए अखराजात शामिल हैं। बाइडेन ने ताहम कहा है कि वो इस माहदे पर दस्तखत करने पर राज़ी नहीं होंगे जब तक कि कांग्रेस के ज़राए आबो हवा के बहरान और बच्चों की निगहदाश्त से निपटने के लिए अलग कानून साजी नहीं की जाती। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी अब एक प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद कर रही हैं। The rest of the world known in the 21st century. I want to thank them for working together and for raising their ideas and concerns with me and with the Vice President, as well as with our Jobs Cabinet. Secretary Buttigieg is here. Good to see you, Mr. Secretary. Secretary Fudd, Secretary Granholm, Secretary. There you go. Okay, you guys got to make sure. I thought everybody was on this side. I was on Secretary Raimondo and Secretary Walsh. I also want to thank Senator Shelley Caputo for her earlier work on infrastructure agreement. We didn't reach an agreement, but she tried her best to get something done. I'm sure it helped produce the final agreement we had. So thank you so much. I appreciate it. One quick question. What are you hoping the Vice President? तुर्की में अंतालियन ईगल 2021 की फौजी मशकें। तुर्की, आज़रबाईजान और रूस की फिजाइया की शिरकत MiG-29 और रूस के सखुई 25 जंगी तैयारे हिस्सा ले रहे हैं।
डिवाइस तैयार कर ली। नैनो टेक्नोलॉजी की इस डिवाइस से सिर्फ 10 सेकंड में कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता है, जिसकी दुरुस्तगी की शरह 99% है। Negatif. Testiniz negatif, geçmiş olsun. Sticker alabilirsiniz ileride. तुर्की का कम्युनिकेशन सैटेलाइट तुर्कसैट 5A जल्दी खला में भेजा जाएगा। तुर्की का कम्युनिकेशन सैटेलाइट तुर्कसैट 5A अमेरिका की स्पेस एक्स कंपनी के जरिए जल्दी खला में भेजा जाएगा। इस सैटेलाइट के जरिए यूरोप, मशरकी वस्त और अफ्रीका में ब्रॉडकास्टिंग सर्विस फराहम की जाएगी। फ्लोरिडा में कोंडो गिरने के बाद जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश जारी। जनूबी अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मियामी के नवाही इलाके में घिरे हुए कोंडो इमारत के मलबे को दबाने वाले रेस्क्यू कारकुनों ने जुम्मे के रोज जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी रखी, क्योंकि अहदेदारों ने बेहिसाब अफराद की तादाद 159 कर दी और तस्दीक शुदा हलाकतों की तादाद 4 हो गई। कोविड-19 की वबा ने यह साबित कर दिया कि लीडरों के बयानात और पॉलिसियां कितनी मोहलक हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जेयर बोल्सोनारो दुनिया भर के दूसरे दाएबाजों के अवाम ने पूरे कोविड-19 के वबा में ये साबित कर दिया है कि बहरान के वक्त इनके बयानबाजी और पॉलिसियां कितनी मोहलक हो सकती हैं, लेकिन मामलात मजीद खराब होने जा रहे हैं। दुनिया का समंदर पर तवील तरीन पुल हांगकांग। जावे मकाओ पुल की लंबाई 45 किलोमीटर है और ये दुनिया का सबसे तवील पुल है, जिसे जदीद दुनिया के 7 अजूबात में भी शामिल किया जाता है। तुर्क ड्रामा सीरियल कुर्लुश उस्मान में मरकजी किरदार अदा करने वाले बोराक और फरहत सुलेमान चनार की मुलाकात। तुर्क ड्रामा कुर्लुश उस्मान के मरकजी किरदार बोराक और ओज च्यूत से ओज इस्तांबुल ग्रुप ऑफ कंपनीज की MD मनकशे हैफा और फरहत सुलेमान चनार की मुलाकात। बोराक कहते हैं कि पाकिस्तान में मकबूलियत पर आवाम का मशकूर हूँ, तुर्क तारीख का मरकजी किरदार निभाने पर फ़ख्र है। बोराक ने ओज इस्तांबुल की सर्विस को भी सराहा। वज़ीर बराए बिजली हमाद अजहर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान में बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए ट्रांसमिशन की सलाहियत में इजाफा किया जाएगा। इस्लामाबाद में मटियारी लाहौर 660 kV HVDC प्रोजेक्ट की हाई पावर ट्रांसमिशन तकरीब का इनेकाद किया गया। ये प्रोजेक्ट आज तक 1200 मेगावाट से चल रहा है। HVDC सिस्टम के जरिए मजमूई तौर पर 1484 गीगावाट मुंतकिल हो चुका है। मटियारी लाहौर HVDC प्रोजेक्ट से पैक की तरजीही फहरिस्त में बिजली का वाहिद ट्रांसमिशन मंसूबा है। Pakistan to the north load centers, thus bringing stability in the power system and enhancing the transmission capability to overcome the power crisis in Pakistan. This project was continued despite the pandemic and was successfully completed. The project will bring relief to the consumers of Pakistan. Ladies and gentlemen, CPEC is of utmost importance for Pakistan, and it will enable the country to enhance industrial production, upgrade energy and communication infrastructure, and improve connectivity within the region. The CPEC has generated a number of employments and investment opportunities in Pakistan and beyond. The present government is actively pursuing CPEC projects for early completion, and at this time I would like to reiterate that the government of Pakistan is fully committed for the projects in power sector related to CPEC, and we wish to further enhance the cooperation in the power sector within the CPEC framework. This government has worked to improve the electricity transmission system in the country, and just a few days ago, a record 24,633 megawatt power was transmitted throughout its national power system. This is a new. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू।
न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम इमरान खान इलाकाई सूरत हाल, इसके अमन व इस्तेहकाम के बाद अमरीकी इन्खला और पाकिस्तान के लिए आगे के रास्ते पर अपने ख्यालात का इजहार कर रही हैं। वजीर आजम इमरान खान से खवातीन अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात में सेनेटर जरका सहरवर्दी, तैमूर फौजिया, अरशद फलकनाज चित्राली और अरकान कौमी असम्बली शाहीन सैफुल्ला तोरो, मलिका बुखारी और जावेरिया जफर शरीक। मुलाकात में मुतलका हलकों के मसाइल, जारी तरक्याती मनसूबों और बजट अमूर पर गुफ्तगू। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान तालिबान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होने देगा। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान सब कुछ करेगा, अफगान तालिबान के खिलाफ फौजी एक्शन नहीं करेगा। वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में कहा है कि ये पूरे पाकिस्तान का मुसम्मम फैसला है कि हम कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की वजीर आला पंजाब सरदार तनवीर इलियास खान के घर मुलाकात। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ व वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर से तहरीक इंसाफ के रहनुमा माउन खसूसी वजीर आला पंजाब सरदार तनवीर इलियास खान के घर आमद। मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ तौसीफ अब्बासी भी वजीर खारजा के हमरा थे। वजीर खारजा का तनवीर इलियास के घर इनके चचा तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर हुल्का LA-22 के नामजद उम्मीदवार सरदार सगीर चगताई की वफात पर इजहार ताज़ियत। वजीर खारजा ने मरहूमा के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। नाज़रीन, इसी के साथ देसी टीवी USA से खबरों का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। हर दिन के आगाज़ से हर दिन के अख्ताम तक देसी टीवी USA रहता है हर पल आपके साथ। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com और क्लिक करें हमारा लिंक ट्री। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर करें फॉलो, क्योंकि आपकी मोहब्बत, आपका साथ हमारी हौसला अफजाई करता है। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीप वॉचिंग देसी टीवी USA। अल्लाह हाफिज़।